Yeah, good morning, everyone. So, in the last class, we did talk about the random variable and its probability distribution. We'll continue with the same idea in today's class as well, and few more problems from the NCERT textbook and the previous last year questions that I'm going to cover now. So initially, I am going to start with the questions from your NCERT textbook only. These are from your NCERT exercise 13.4. So that color code is simply showing that this is a problem from your NCERT book. So you will observe that the question, various paths are given, but they are very, very simple. What exactly is required? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने शॉर्ट में बोला था पीडी, और मेन यही हमने यहां सीखा था कि रैंडम वेरिएबल एक्स को यहां पर सबसे पहले डिफाइन किया, व्हाट ऑल वैल्यूज एक्स कैन टेक, और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को निकाल लिया, एंड देन दिस इज फाइनली रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. So let me consider, say, the second part, middle one. Find the PD of number of tails in the simultaneous toss of 3 coins. So the question is very easy, but just एक रिमाइंडर के लिए रिकॉल हो जाए चीजें, इसीलिए आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली. तो आप चेक करिए, आपको किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स. So let x represents number of tails. Then x can be, अब आप याद रखिए यहां कितनी बार टॉस हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो एक भी टेल नहीं आए, 1 tail, 2 tails, or there can be 3 tails. So the sample space in this case is very easy to write. 3 coins में तो I can quickly write like this. बट एज सजेस्टेड इनको लिखना प्रॉपर ऑर्डर में ही, जिस तरह से मैंने ये लिखा है. 4 आ गए एच वाले और फिर टी से स्टार्ट होने वाले. एंड नाउ फ्रॉम दिस वी विल स्टार्ट फाइंडिंग पी ऑफ x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, टेल x है तो एक भी टेल नहीं हो. एक भी टेल नहीं हो का मतलब सिंपली हेड 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 की बात हो रही है, दिस केस. सो दैट द प्रोबेबिलिटी इज 1 केस आउट ऑफ 8. ये तो आपका 10th का सिंपल कॉन्सेप्ट आ चुका है. x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया है, 1 टेल. तो 1 टेल वाले केसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं, 1 टेल दिस, और एक टेल एग्जैक्टली कहां दिख रही है ये. सो आइडिया अपने आप क्लियर था. तो प्रोबेबिलिटी एच एच टी आ जाए, और आ जाए एच टी एच आ जाए, और आ जाए टी एच एच. सो 3 cases favored out of 8 possibilities. Similarly, p of x is equal to 2 का मतलब exactly 2 tails. So 2 tails I can see over here, here, and here. So HTT or THT or TTH. That is again 3 by 8. And finally, P of x is equal to 3 means all 3 are tails. So P of TTT, एक ही केस आया out of 8 cases. Ensure that the sum of all the probabilities which you are getting is 1. क्या मतलब, summation of p of x it should be 1. तो आप चेक कर सकते हैं 1 by 8 plus 3 by 8 plus 3 by 8 plus 1 by 8.
ये सम इनका 1 आ रहा है। सो फाइनल स्टेप में क्या लिख देंगे, देयरफॉर required probability distribution is, that is written in the form of a table like this. So we write x, we write px, and x can be 0, 1, 2, and 3. And the corresponding probabilities are with me, 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, and 1 by 8. So this completes the answer. And recall, I also did talk about the finding out the mean, variance, and standard deviation. That in a reduced syllabus, not a part of your this time board examination. But still, there is a need to cover all these topics. Every student should need to understand. किसी ना किसी वे में आफ्टर 12th you will be appearing for the entrance examinations. So entrance examination में ये सब टॉपिक आने वाले हैं, चाहे वो डिलीट भी हो चुके हों. So they, universities and colleges, they are not going to reduce the syllabus because of that. तो सीबीएसई ने कंसीडर किया है, बट आईआईटी के जैसे एग्जाम्स का है तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है. बट वहां उन सब चीजों को, या आप अगर बीबीए, बीएमएस, आईपी के, डीयू के, या और लॉ, या कोई भी एंट्रेंस की बात करेंगे तो यू विल हैव टू अपीयर, और उनमें ये सब चीजें रहने वाली हैं. इसीलिए ये सब समझना आपके लिए जरूरी है और बहुत इजी भी है. मैं इसलिए बहुत एक्स्ट्रा चीजों में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं. अदरवाइज देयर आर लॉट अदर थिंग्स व्हिच मे आल्सो बी कवर्ड. मैं सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं मान के चलता हूं जो आपको आनी चाहिए. सो मीन, मीन की नोटेशन म्यू, और दूसरा इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा था. एंड दिस इज गिवन बाय समीशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स. तो जस्ट अ रिकॉल ऑफ द फॉर्मूला हो गया आपका यहां पर. और ये क्या हो गया इस केस में, 0 × 1/8 x इंटू पी एक्स. यहां पर ऊपर 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस फिर हो जाएगा 3 × 1/8. So that simply 3 plus 6 plus 3/8, which is 9, 12/8 और 3/2. मीन के बाद हमने किसकी बात करी थी, वेरिएंस ऑफ एक्स, जिस इज सिग्मा स्क्वायर. एंड दिस इज गिवन बाय, आपको सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला ही याद रखना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और माइनस कर दिया था मीन का होल स्क्वायर. सो दैट दिस इज गिवन बाय, सिर्फ मुझे सिर्फ पहली वाली टर्म लिखनी है, और उसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर × 1/8 प्लस 1 स्क्वायर × 3/8 प्लस 2 स्क्वायर × 3/8, और प्लस यहां से 3 स्क्वायर × 1/8 माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन तो 3/2 आ चुका है, उसका होल स्क्वायर. Go for this simple calculation, you will have your required answer. और लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा था, दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो जो भी वैल्यू आई होगी आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर. बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स दे वर आस्किंग मी कि सर ये तो वेरिएंस या मीन वगैरह सिलेबस में नहीं है, तो करना है तो बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में गारंटेड नहीं आएगा मीन वगैरह निकालना. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक मेरा काम खत्म हो चुका है. बट एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही तो चीज आपको मैं कह रहा हूं कि मीन और वेरिएंस इनका फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट्स इट. और सिंपल सिंपल एप्लीकेशन है.
प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग, थोड़ा पहले अपने आप सोचिए। From a lot of 30 bulbs which includes 6 defective, तो आपके पास डिफेक्टिव कितने हैं? 6 है। और ऑब्वियसली फिर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए 24, क्योंकि टोटल तो आपके पास 30 का लॉट था। अब इसमें क्या कहा गया है? अ सैंपल ऑफ 4 bulbs is drawn at random with replacement. This is important. Find probability distribution of किसका? Number of defective bulbs. सबसे पहली बात, डिफेक्टिव आना, यहां सक्सेस डिफाइन करा गया है। नंबर और डिफेक्टिव बल्ब की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 6/30 हो गया, विच इज, एंड नॉन डिफेक्टिव को मैंने अगर इवेंट एन कह दिया, सो दैट इज ऑब्वियसली 4/5। तो आपके पास x को क्या एज्यूम करेंगे? लेट x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और क्लियरली x कैन बी, अब x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 4 बल्ब्स को ड्रॉ करा गया है। 0 बल्ब कैन बी डिफेक्टिव, 1 बल्ब, 2 बल्ब्स, 3 बल्ब्स, और ऑल 4 बल्ब्स में भी डिफेक्टिव। तो वो सारे केसेस में यहां पर जॉट डाउन करूं, लिस्ट डाउन, बेसिकली मतलब सैंपल स्पेस लिखा जाए। तो याद रखिए, सैंपल स्पेस विल कंटेन 16 एलिमेंट्स, और वो लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं है वैसे, बट स्टिल लेट अस अप्लाई अ सिंपल लॉजिक। और देखिए उसके लिए अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0? कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, राइट? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब नॉन डिफेक्टिव। तो 4 बल्ब हैं, चारों ही नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो पहला नॉन डिफेक्टिव आ जाए, वो कितना है? 4/5। 4/5 into 4. नेक्स्ट भी, ये तो आइडिया लग जाता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, तो ये एक्चुअल में 4/5 की पावर 4 आ रहा है। और इसे सॉल्व कर देना यहां पर ही, क्योंकि ये बाद में टेबल में आपको लिखना ही है। तो कितना आ गया ये? 256/625। सिमिलरली लेट मी कंसीडर x इज इक्वल टू 1। अब यहां बहुत ध्यान से समझना, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? 1 डिफेक्टिव, एक डी आना चाहिए, रिमेनिंग 3 आर नॉन डिफेक्टिव। बट ध्यान से सोचिए, ये हो सकता था, या डी जो है वो सेकंड प्लेस पे आ जाता, और डी कैन बी एट द थर्ड प्लेस, और डी कैन बी एट द फोर्थ प्लेस। तो चेक इट आउट, इसे वैसे लॉजिकली सोचो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और का मतलब प्लस हो जाता है। तो आप ये ऐसे इसे सेपरेट कर देंगे, एन एन डी एन, और फोर्थ वन चलो यही लिख देता हूं, पी ऑफ एन 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 डी। बट विद वन सिंपल अंडरस्टैंडिंग, पहले वाले पे सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूं, डिफेक्टिव आना 1/5, और नॉन डिफेक्टिव
4/5, 4/5, 4/5, 3 बार आ गया। और इसकी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम यही होगी, तो ये सेम 4 बार आ गया तो इंटू 4 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब चेक करिए ये कितना आ रहा है, ये भी 256 ही आ रहा है। यस सर। 256 अपॉन 625। फर्दर, व्हाट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 डिफेक्टिव, तो dd और फिर रिमेनिंग nn। बट अब इनके अंदर भी तो कई सारी पॉसिबिलिटीज बनकर आएंगी। हो सकता था क्या हो जाता, nn dd हो जाता, नहीं तो tn dn हो जाता, नहीं तो nd nd हो जाता। और कोई केस पेंडिंग है लग रहा है? एनीवन? N double D N। यस, n डबल डी, फिर n, और d डबल एन डी। सो द आइडिया इज, अब आप चेक करिए वैसे जितने केसेस आने थे हमने कंसीडर कर ली हैं, बट हाउ यू विल बी श्योर अबाउट दिस कि भाई कोई मिस तो नहीं हुआ है। तो आपको एक 11th क्लास का छोटा सा कंसेप्ट याद दिलवा देता हूं, परमुटेशन का। बहुत इजी कंसेप्ट है, एकदम से ध्यान आ जाएगा। फोकस करो सिर्फ इसके ऊपर, पहले वाले केस पर। आई रिक्वायर 2 डिफेक्टिव और इसका मतलब 2 नॉन डिफेक्टिव। अब आपके पास ये 4 प्लेसेस हैं, डी डी एन एन वाले 4 प्लेसेस हैं। 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। बट याद रखिए डी का रिपीटेशन हुआ है 2 बार, तो रिपीटेशन जितनी बार हुआ होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। और एन भी 2 बार आया है, इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो चेक करिए ये आपके पास कितना आ गया, 6। इसका मतलब पहला वाला केस जो था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी डी आने की, 2 डी हैं और 2n है। और सेम यही इन सभी की प्रोबेबिलिटीज रही होगी, तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा। So please make it sure that this idea is clear. There is also one subtopic जो NCERT में 13.5 में है, बर्नौली ट्रायल्स using the concept of binomial distribution which is not in our syllabus now. उसे अगर मैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं उसे अप्लाई करूंगा तो सिंगल स्टेप में हम ये लिख सकते हैं। बट आई would prefer not to use this time in the board examination. एक आइडिया देने के लिए मैंने लास्ट स्लाइड में अपने 2 क्वेश्चन सिर्फ रखे हैं उस आइडिया से, बट नॉट इन डिटेल्स या और एक्स्ट्रा नहीं बात करूंगा। तो बस अब आपने इसे सॉल्व करा, ये कितना आ गया 96 अपॉन 625। ये देख लो 96 ही आ रहा है ना, यार। यस सर। फिर हमने बात करी क्विकली, अब मैं पी एक्स इक्वल टू 3 और 4 तक जाना है। तो पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। फिर अब आपको पता है पोजीशन जो है सिर्फ n की चेंज करते रहो, n यहां आ सकता है या n पहला हो सकता था। और इसे भी सोचने का बहुत इजी वे फिर बता देता हूं। पहला वाला केस सोचा, 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल वेज, और रिपीटेशन d का हुआ है, d इज कमिंग 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 4 इज द आंसर। तो पता चल गया कि ऐसे 4 केसेस आएंगे, तो 4 टाइम्स पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव 3 है 1/3,
और नॉन डिफेक्टिव एक है 4/5, सो दैट इज सिंपली 16/625। px इक्वल टू 4 का मतलब डिफेक्टिव ही आ जाए चारों, डी 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 डी, सो दैट इज ऑफ कोर्स डी डिफेक्टिव 1/5 की पावर 4, which is 1/625. Once this is written, therefore required, आपसे तो सिर्फ पीडी ही पूछा था ना, तो required probability distribution is, आप टेबल बना दीजिए यहां पर और उसमें वो सारी वैल्यूज को वो सारा डिलीट हो गया। हाँ, वो वापस नहीं हो पाएगा इसमें। यस, तो जो हमने सारा बना लिया था, बस अब आप उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में लिख लेंगे। एंश्योर दैट समीशन उन सभी का 1 आ रहा है। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। Check out this question. A coin is biased so that head is three times as likely to occur as a tail. मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी दोनों की, हेड और टेल की? सोचिए जरा ध्यान से। 1/4। यस, तो आप चेक करिए, बट इसको सोचा कैसे है? यहां तो चलो इजी था वैसे, बट स्टिल आपको एक नॉर्मल वे बता देता हूं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको कितना बताई थी? 3 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल ऑब्वियसली हमेशा 1 होगा, सो 4x इज 1 और x आ गया 1/4। अब x की वैल्यू पुट कर दी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गया 1/4 और हेड आ गया, x की जगह 1/4 रख दिया, 3/4। फर्दर क्या कहा है? इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एन, मैं एन को डिनोट कर रहा हूं से नंबर ऑफ टाइम्स जैसे है, या एक्स की बात करी गई है। एक्स क्या है? फाइंड पीडी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो एक्स इज नंबर ऑफ टेल्स। एक्स कैन बी, से 2 बार टॉस करा है तो 0, 1 और 2। नाउ यू कैन इजीली गो फॉर दिस। 0 का मतलब नो टेल, नो टेल का मतलब दोनों बार हेड हेड आ जाए, 3/4 इंटू 3/4 एंड सो ऑन। ऐसे ही P ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? 1 टेल। सो पहला वाला टेल आने का 1/4, 3/4 और इसी का ट्वाइस हो जाएगा, सो दैट वुड बी 3 या एक काम करते हैं, हम इसको अभी 6/16 ही लिख देते हैं, वो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है। बाकी आप चाहो तो ऑफ कोर्स उसको 3/8 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड सिमिलरली राइट फॉर P ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2, बोथ आर टेल्स, और टेल आने की थी 1/4, सो 1/16। कुछ मिसिंग है? एक बार जरा चेक करना। 6, 9, 16 नहीं, ठीक है। यस, सम ऑफ देम इज 1,
So therefore required PD is that tabular representation. That's it. मीन वेरिएंस आप अपने आप अब निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल यू शुड नो इट. 0, 1, 2, 9/16, 3/8 and 1/16. Check out this question. अब आपको पीडी टेबल दिया हुआ है, तो बस अब आपको के की वैल्यू निकालनी है एंड ऑल दीज पार्ट्स. तो हाउ शुड वी प्रोसीड? सो पी ऑफ एक्स का टोटल सम 1 होगा. सबमिशन पी एक्स इज 1. इसका मतलब ये इन सभी का सम 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k 3k के स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस के, इन सभी का सम को 1 लिख दीजिए और सॉल्व इट. तो ये 7, 8, 9, 10k स्क्वायर प्लस 9k आ रही है, देखना एक बार. 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 10 आ रहा है. एक बार प्लीज चेक कर लीजिए. या 9 ही था ये. So you will have a quadratic equation in K. सॉल्व करेंगे K की दो वैल्यूज, एक वैल्यू मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आंसर यूनिक होना चाहिए इन जनरल. तो अकॉर्डिंगली याद रखना K जो है वो प्रोबेबिलिटीज की टर्म में है, तो इट शुड बी अ रियल नंबर बिटवीन 0 to 1 ओनली. K की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे. आई विल गेट माई प्रॉपर रैंडम वेरिएबल की टेबल. तो K भी आ गया और टेबल कंप्लीट हो जाएगी. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? x लेस देन 3. x लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? 0, 1 एंड 2. 0 पे तो सिंपली 0 था. व्हेन x इज 1, ये आपके पास k था और ये 2k था. तो बस k मैं ऊपर निकाल चुका हूंगा, उसकी वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे. सिमिलरली यू कैन गो फॉर द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं k की वैल्यू सही से निकाल दूं. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से. Two numbers are selected at random. This is important. Without replacement. और टू नंबर्स को सेलेक्ट करा है फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आपके पास मान लीजिए फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इनमें से टू नंबर्स आर सेलेक्टेड. दो नंबर सेलेक्ट करने हैं तो
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 में से 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है, 6C2। थिंक लॉजिकली। 11th का ये कॉम्बिनेशन का पहला कंसेप्ट है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट भी है। और ये आ गया 6 फैक्टोरियल, या सिंपली 6 इंटू 5/2 विच इज 15। तो 15 तो टोटल आपके पास वेज हैं। हम वो सारे वेज को ना सोच लेते हैं। 15 वेज तो लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कैसे होगा आप सोचिए, आपने 1 लिया, 1 के साथ आप क्या क्या पॉसिबल था सेलेक्ट कर सकते थे? 2 नंबर ही तो सेलेक्ट करने हैं, 1 2। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए 1 1 नहीं आ सकता। फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। याद रखिए, नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा तो 2 के साथ 2 1 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में 15 केसेस ले लिए हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ए बी इज सेम एज बी ए। तो 1,2 एंड 2,1 आपने 2 नंबर सेलेक्ट करे हैं, तो 1 एंड 2 करो, या ये कहो कि मैंने 2 और 1 को सेलेक्ट करा है, दैट इज द सेम केस। इसीलिए यहां पर सिर्फ 1 2 आया है, तो यहां 2 के साथ अब क्या आ सकता है? 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 3 की टर्न 3 4, 3 5, 3 6। 4 की टर्न 4 5, 4 6। 5 की टर्न 5 6। चेक इट आउट, ऑल 15 हो गए हैं, नहीं हुए? फर्स्ट लाइन में देखो जरा, मैंने इसलिए सिमेट्री की वजह से लिखा है। फर्स्ट लाइन 5 है, फिर 4 लिखे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो देयर सम इज 15। तो सैंपल स्पेस में ये 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेट x denotes larger of the two numbers। लेट x क्या है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? एनीवन? 2 3 5 6 2 3 4 4 5 6 5 6, यस। सिर्फ लार्जर कभी भी 1 नहीं आ सकता, ये लॉजिक है, सिंपल आपके सामने ही है। लार्जर जब मैं लूंगा तो लार्जर 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। तो अब आप ध्यान से सोचिए, आपसे फाइंड ई ऑफ एक्स कहा गया है। ई ऑफ एक्स का मतलब बेसिकली आपसे मीन कहा है। तो चलो मैं ये मान लेता हूं, इस साल बोर्ड में मीन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन को क्या कर दें, फॉर्म दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स। दैट्स इट, तो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन बन गया। तो एक चीज ही तो कम करी है। तो दिस इज वेरी मच इन योर सिलेबस। तो अब आप चेक करिए, व्हाट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब कौन सा केस आएगा? सिर्फ ये सोचिए, लार्जर 2 कितने केसेस में दिख रहा है इन सभी सैंपल स्पेस में से? 1 ओनली वन केस ऑफ 1,2। सो 1 केस फेवर कर गया आउट ऑफ 15 पॉसिबल केसेस। ये आप चेक कर लो, टोटल 15 केसेस लिखे गए हैं। ऐसे ही क्विकली आई कैन राइट x इक्वल टू 3। 3 का मतलब लार्जर 3 हो, तो कितने केसेस दिख रहे हैं? दिस एंड दिस। सो केसेस लिख के दिखा दो हमेशा, तो वो बेटर रहेगा, लाइक दिस। और 2 केस फेवर कर गए आउट ऑफ 15। सिमिलरली x इक्वल टू 4, लार्जर 4 कहां दिख रहा है? 1 4, 2 4 एंड 3 4। 1 4, 2 4 एंड 3 4। एक अपने आप आइडिया भी लग जाता है कि एक सिमेट्री से 1/15, 2/15, 3/15, इट शुड बी से 4/15। स्टिल हम चेक कर लेते हैं।
5, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 5, 1,5 आएगा, 2,5, 3,5 एंड 4,5 व्हेन लार्जर इज 5। तो ये वाले केसेस बस आप यहां रीजन आउट कर देना, 3,5 and 4,5, so that 4/15 and x equal to 6, of course, 1, 2, 3, 4, 5, 5/15 केसेस बता देना। और रिक्वायर्ड पीडी इज, वो आप टेबुलर फॉर्मेट में लिख देना। तो बोर्ड के हिसाब से तो आई एज्यूम कि इतना ही हमारा क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा। x एंड px, so 2 से शुरू हुआ है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 एंड 5/15। सम इनका चेक कर लीजिए, 1 आना चाहिए। In one of the books, I don't remember, I found the solution in a different way. This is the perfect correct hai, and I will prefer this only. But what in that particular book they have done, उन्होंने कॉम्बिनेशन से नहीं करा। वैसे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन में ही आएगा। उन्होंने लॉजिकली कैसे क्या कहा कि 1,2 है और 2,1 है, उन्हें अलग अलग केसेस काउंट कर लिया। इसका मतलब जितने मैंने केसेस यहां लिखे थे सैंपल स्पेस में, सीधा उसका डबल हो जाएगा। 1,2, 2,1, 1,3, 3,1। तो इसका मतलब 30 केसेस यहां उन्होंने बता दिए। फर्क क्या पड़ेगा जब आप पी एक्स इक्वल टू 2 देखेंगे, तो यहां 1,2 और फिर दूसरा केस आ जाएगा 2,1। तो 2 केस फेवर करेंगे आउट ऑफ 30 केसेस। स्टिल द प्रोबेबिलिटी तो यही आई ना। तो फर्क क्या पड़ा, 2/30 आ गया, यहां पर 4/30 आ गया, 6/30 आ गया एंड सो ऑन। दैट मेथड में बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज करेक्ट, दो आई रिकमेंड विदाउट है तो सीधा कॉम्बिनेशन लगाइए आप यहां। यहां तक आज हम कंप्लीट रखेंगे एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस ऑल्सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क का पार्ट रहेगा, मैं अलग से बना के भेज दूंगा आपको। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलिए ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास, यू कैन लीव। थैंक यू। हर्षप्रीत, हिमांशी, जयादित्य, नव्या, तन्मय। लीव द क्लास। हर्षप्रीत, हिमांशी, जयादित्य, तन्मय।